Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Givaradhari Gopi Jana Vallabha Givaradhari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Sodanandana Bhajana Ranjana Sodanandana Bhajana Ranjana Jamna Tira Balachari Jamna Tira Balachari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Givaradhari Gopi Jana Vallabha Givaradhari Sodanandana Bhajana Ranjana Sodanandana Bhajana Ranjana Jamna Tira Balachari Jamna Tira Balachari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Givaradhari Sodanandana Bhajana Ranjana Sodanandana Bhajana Ranjana Jamna Tira Balachari Jamna Tira Balachari Jai Shri Krishna
Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavinda Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavinda Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Prabhupada, 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 Prabhupada. Hare Radha, Rasi Hare Radha, Rasi Hare Radha. Oh, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol.
Hare Ba, Hare Ba, Hare Ba, Hare Ba. जय ओम श्री पाद प्रमाण से जमाएंगेश्वर अमेश्वर भक्तिनंद स्वामी श्री प्रभुपाद महाराज की श्री श्री गौणताई की श्री श्री राधा श्री श्री सीताराम हनुमान की ऑल ग्लोरी और गुरु श्री गुरु श्री गुरु ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद् भागवतम दसवां स्कंद 15वां अध्याय और श्लोक नंबर 6 एते लिनस्तव यशो अखिल लोक तीर्थम गायन्त आदि पुरुषानुपथम भजन्ते प्रायो अमि मुनिगणा भवदीय मुख्या गूढ़ं वने अपि न जहति अनघात्मदेवम् एते लिनस्तव यशो अखिल लोक तीर्थम गायन्त आदि पुरुषानुपथम भजन्ते प्रायो अमि मुनिगण भवदीय मुख्या गूढ़ं वने अपि न जहति अनघात्मदेवम् एते लिनस्तव यशो अखिल लोक तीर्थम गायन्त आदि पुरुषानुपथम भजन्ते प्रायो अमि मुनिगणा भवदीय मुख्या गूढ़ं वने अपि न जहति अनघात्मदेवम् बोलिए। माता जी शब्द अर्थ एते ये अलिनः भौरे तव आपका यशः कीर्ति अखिल लोक समस्त जगतों के लिए तीर्थम तीर्थ स्थान गायन्तः गुणगान कर रहे हैं आदि पुरुष हे आदि भगवान अनुपथम मार्ग में आपका अनुसरण करते हुए भजन्ते पूजा कर रहे हैं प्रायः अधिकांशतः अमी ये मुनिगणा मुनिजन भवदीया आपके भक्तों में मुख्यः अतीव घनिष्ठ गूढ़म छिपाया हुआ वने जंगल में अपि यद्यपि न जहति नहीं छोड़ते अनघ हे निष्पाप आत्मदैवम अपने आराध्य देव को। अनुवाद तथा तात्पर्य। अनुवाद हे आदि पुरुष ये भंवरे अवश्य ही महान मुनि तथा आपके परम सिद्ध भक्त होंगे
क्योंकि ये मार्ग में आपका अनुसरण करते हुए आपकी पूजा कर रहे हैं और आपके यश का कीर्तन कर रहे हैं, जो संपूर्ण जगत के लिए स्वयं तीर्थ स्थल है। यद्यपि आपके इस जंगल में अपना वेश बदल रखा है, आपने इस जंगल में अपना वेश बदल रखा है, किंतु हे अनघ, वे अपने आराध्य देव आपको छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। तात्पर्य, इस श्लोक में गूढ़म शब्द महत्वपूर्ण है। यह इंगित करता है कि यद्यपि कृष्ण या बलराम के रूप में भगवान इस भौतिक जगत में सामान्य व्यक्ति जैसे लगते हैं, किंतु बड़े बड़े ऋषि मुनि भगवान को परब्रह्म के रूप में हमेशा पहचान लेते हैं। ईश्वर के सारे दिव्य स्वरूप सच्चिदानंद में हैं। हमारे भौतिक शरीरों के सर्वथा विपरीत, जो कि अस्थाई तथा दुख एवं अज्ञान से पूर्ण होते हैं। तीर्थ शब्द का अर्थ है भौतिक संसार पार करने का साधन। भगवान के यश के श्रवण या कीर्तन मात्र से मनुष्य तुरंत ही भवसागर के परे आध्यात्मिक पद को प्राप्त होता है। इसलिए भगवान के दिव्य यश का वर्णन यहाँ प्रत्येक मानव के लिए तीर्थ के रूप में हुआ है। गायनतः शब्द सूचित करता है कि मुनिगण अपना मौन व्रत भंग करके एवं अन्य निजी कार्य का त्याग करके भगवान के कार्यकलापों का गुणगान करते हैं। असली मौन का अर्थ है व्यर्थ न बोलना, अपनी वाणी को भगवान की प्रेमा भक्ति से संबंधित ध्वनि तथा बातचीत तक ही सीमित रखना। अनघ शब्द बतलाता है कि भगवान कभी कोई पाप कर्म या अपराध नहीं करते। यह शब्द इस बात को भी सूचित करता है कि वे अपने निष्ठावान भक्त द्वारा अकस्मात किए गए पाप या अपराध को तुरंत क्षमा कर देते हैं। इस श्लोक के विशेष संदर्भ में अनघ शब्द यह सूचित करता है कि बलराम जी लगातार पीछा करने वाले भौरों से तनिक भी विचलित नहीं हो रहे थे। उन्होंने उन्हें यह आशीर्वाद दिया, हे भौरों, मेरे गोपनीय कुंज में आओ और इसकी सुगंधि का आनंद लो। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनाशलाकया श्री चैतन्य मनोविष्टम वंदे हम श्री गुरु श्रीयुता श्री राधा कृष्ण सहागना ललिता हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु भयेवच पतितानां पावनेभ्यो जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। भक्तों को गर्मी लग रही है, आप एक पंखा चला सकते हो, पंखों की बहुत ऊंची आवाज़ होती है, ओके लग रहे like a plane landing. So when you put on those fans, the noise they make is a plane landing at Santa Cruz Airport. Yeah. इते अधिनास्तव यशो किया लोक तीर्थम यंत आदि पुरुषानुपथम भजन्ति यो अमी मुनि गणा वोदय मुखया
पूजा मने पी एवं। तो आप 10 स्कंद में भगवान की अद्भुत लीला के विषय में पढ़ रहे, और 10वां स्कंद भागवतम का है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और 10वें स्कंद में सार रूप में प्रभु जी हमें प्रभु ने कौन सा ग्रंथ दिया? कृष्ण बुक। प्रभु की इच्छा थी कि ये ग्रंथ जल्दी से जल्दी प्रकाशित हो। जब प्रभु जी अमेरिका गए तो अपने साथ कृष्ण बुक की मैन्यूस्क्रिप्ट ले गए थे, और जो समाप्त करना था अमेरिका जाके किया। उसके पश्चात प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि इसे फर्स्ट क्लास प्रिंटिंग करनी जाए, और उस समय संस्था नहीं थी, प्रधान की कमी थी। तो प्रभुपाद जी सोच रहे थे हु विल पे फॉर दिस, कौन सहयोग देगा। उन दिनों में प्रभुपाद जी के प्रसिद्ध भक्त इंग्लैंड गए थे कृष्ण भक्ति का प्रचार आरंभ करने के लिए। और इंग्लैंड में उनका परिचय हुआ किससे? जॉन लेनन। और उन्होंने उनको प्रचार किया और उन्होंने रुचि प्रकट की। तो जब ब्रह्मानंद प्रभु श्याम सुंदर आए थे प्रभु जी को रिपोर्ट देने के लिए न्यूयॉर्क में, तो प्रभुपाद ने कहा, व्हाई डोंट यू आस्क जॉर्ज पे फॉर द प्रिंटिंग ऑफ द कृष्ण बुक। और श्याम सुंदर ने कहा, प्रभुपाद ही इज अ न्यू डिवोटी, वी आस्क हिम ही मे मिसअंडरस्टैंड अस। प्रभुपाद ने कहा, डोंट वरी, जस्ट टेल हिम दैट आई वांटेड इट। तो जब श्याम सुंदर वापस लंदन आए तो उन्होंने उनको बोला, My spiritual master wants you to pay for the printing of this Krishna book. जॉर्ज तुरंत ही मान गया। तो प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि भगवान की जो अद्भुत लीलाएं हैं उनको ठीक रूप से पढ़ा जाए। जन्म कर्म छा में दिव्यम तो विदिता देहम पुनः जन्म इति ममुषु। तो परम भगवान जो हैं उनका प्रकटन और अप्रकट होना क्या है? दिव्यम है। दिव्यम का अर्थ है जो कि भौतिक इंद्रियों के पार हो, कोई की तुलना नहीं कर सकता। तो परम भगवान की लीला जो है वो भी दिव्यम है। तो 10वें स्कंद में आप भगवान की अनेक लीलाओं को पढ़ते हो, और आनंद के साथ कथा में व्यास जी ने क्या शिक्षा दी? भगवान की बाल लीला, भगवान की बाल लीला का वर्णन किया। और आप बाल लीला जब पढ़ते हो क्या देखते हो? छोटे बच्चे ने इतनी अद्भुत लीला प्रकट कर दी, इम्पॉसिबल, असंभव। उदाहरण के लिए जब उन्होंने अपने मुंह को खोला तो यशोदा माता ने क्या दर्शन प्राप्त किया? सारे विश्व का दर्शन प्राप्त किया। वो सोचने लगी मैं सपना तो नहीं देख रही, ये वास्तविकता है। तो भगवान ने दिव्य लीला प्रकट करना आरंभ कर दिया था। जैसे कंस ने पूतना को भेजा था, किस लिए? कि कंस को सूचना प्राप्त हो गई थी भगवान प्रकट हो गए हैं, जिनका उनको भय था। और भगवान ने पूतना का भी बड़ी सरलता से वध किया। तो जब हम परम भगवान की चर्चा करते हैं, वी शुड नो ही बियॉन्ड द मटेरियल सेंसेस। आज के वातावरण में हम इसे विश्वास नहीं करते। हम कहते हैं ये संभव है, ये संभव नहीं है। भगवान के लिए वो भी कार्य संभव नहीं है। द्वैत हम चूर बनादि अनंत रूपम अंत्यम पुराना पुरुषम अव्यवनम चा विदेश दुर्लभम दुर्लभम आत्मभक्त गोविंद महादि पुरुषम। तो ब्रह्मा जी बड़े सुंदर शब्द में कहते हैं भगवान हर चीज़ के कारण है और उनका कोई कारण नहीं है।
और परम भगवान कौन है, उनका ज्ञान शास्त्र में प्राप्त होता है। तो इस 15 अध्याय में आप भगवान की एक और लीला पढ़ रहे हो। वो लीला क्या है, जिसमें उन्होंने असुर जनक असुर का वध किया। भगवान जब प्रकट होते हैं अद्भुत लीला प्रकट करते हैं। और क्या कारण है कि पहले व्यासदेव ने उनकी बाल लीला का वर्णन किया, फिर आगे जाकर उनकी रास लीला की चर्चा कर दें। क्या कारण है? आजकल भारत में देखते हो अनेक कथाकार अब कथा करते हैं, सीधा पहुंच जाते कहाँ, उनकी रास लीला। व्यासदेव बड़े गहराई के साथ उनकी बाल लीला का वर्णन करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि जब हम भक्त वहाँ तक पहुँचेगा उसके मन में कोई शंका नहीं रहेगी, क्या कृष्णा क्यों भगवान से, भगवान जो है वो है दिव्यम। तो परम भगवान है दिव्यम। आज के श्लोक के तात्पर्य में पापा जी इस विषय की चर्चा कर रहे हैं। उदाहरण के लिए तो इस अध्याय में आप पढ़ते हो कि भगवान ने देवसुर का कुछ का कैसे वध किया। फिर इस विषय की चर्चा करने से पहले व्यासदेव जी हमें भगवान के वैकुंठ धाम का ज्ञान दे रहे हैं। और आप पढ़ते हो क्या, भगवान का जो धाम है वो क्या है, बिल्कुल दिव्यम है। तो तात्पर्य में प्रभु जी कह रहे हैं पूर्णम जो शब्द है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और परम भगवान जब प्रकट होते हैं वो प्रकट होते हैं उनके दिव्य रूप में, और साधारण व्यक्ति जैसे ही दिखते हैं। हमें ये समझ लेना चाहिए भगवान के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है, असंभव नहीं। भगवान किसी कार्य को किसी भी अंग से कर सकते हैं। जैसे कि आप और हम जब प्रसाद खाते हैं तो कैसे खाते हो, एक ही साधन है। पर भगवान किसी एक इंद्रिय से दूसरी इंद्रिय का कार्य कर सकते हैं। जैसे प्रभु जी ने कहा आप हो हर चीज़ के कारण। तो भगवान के जो भक्त हैं वो क्या करना चाहते हैं, वो सदा भगवान के गुणगान करना चाहते हैं। और ये है भक्तों की इच्छा कि क्या किया जाए, परम भगवान का गुणगान। और परम भगवान का गुणगान करोगे तो क्या लाभ होगा, फिर आप अपने आप को एक भौतिक जगत से छुटकारा दिला सकते। भगवान के धाम के, भगवान के रूप के विषय में क्या क्या यहाँ कहा जा रहा है कि वो जो हैं बिल्कुल दिव्यम है। और उनका जो शरीर है क्या है, सच्चिदानंद विग्रह। हमारा शरीर क्या है, प्रभु जी तात्पर्य में क्या कहते हैं, हमारा शरीर है कष्टों से भरा हुआ, वो हर चीज़ जो है स्थायी है। तो ये है अंतर किसमें, हमारे में और परम भगवान में। हमारा जो शरीर है वो कष्टों से भरा हुआ है। आज समाज में क्या देखते हो, जो कष्ट है वो क्या बढ़ते जा रहा है, और क्लेश। इसे भगवान क्या कहते हैं, सर्वधर्मा परित्यज्य मामेकं शरणं हम तो हम सब। भगवान कहते हैं सब धर्म को छोड़कर क्या करो, यही शरण में। तो यहाँ तात्पर्य में प्रभु जी कह रहे हैं ये बूझेयम सबके द्वारा कि भगवान जब प्रकट होते हैं वो दिखते हैं साधारण व्यक्ति जैसे, वो हैं क्या, परम भगवान। तो आज के वातावरण में
हर व्यक्ति स्वीकार नहीं करता भगवान की अद्भुत लीला के विषय में। भगवान की जो लीला है अद्भुत है। जब भगवान प्रकट हुए थे माता पिता के समक्ष तो किस रूप में प्रकट हुए थे? चतुर्भुज रूप में। उनके माता पिता कैदी थे और उनके भाई को भय था कि उनका वध होगा भगवान देवकी के पुत्र के द्वारा। तो उसने इतना अत्याचार किया था। और भगवान जब प्रकट हुए, पहले प्रकट हुए किस रूप में? 4 हाथों के साथ। और जब अपने माता पिता को यकीन दिलाना चाहते थे, क्या? घबराओ मत, नाउ आई अपीयर्ड। जब भगवान ने, जब माता पिता ने कहा साधारण बच्चे का रूप ग्रहण कर लो, उन्होंने क्या किया? तुरंत ही साधारण बच्चे का रूप ग्रहण कर लिया। तो परम भगवान जो हैं ये अचिंत्य। चिंत्य का क्या मतलब? इनकंसीवेबल। भगवान जो है अचिंत्य है। तो तात्पर्य में प्रभु जी ने श्लोक के महत्वपूर्ण शब्दों के ऊपर अपने तात्पर्य दिया है। तो भगवान के जो रूप हैं वो सारे दिव्यम हैं और आनंद से भरे हुए। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा सोचती न कर। जो व्यक्ति इस आध्यात्मिक मार्ग में जुड़ेंगे क्या प्राप्त होगा? आनंद ही आनंद। तो बौद्धिक समाज में हम सब आनंद की खोज में हैं, हमें प्राप्त होता है। रूप गोस्वामी ने भक्ति रत्न सिंधु में हमें शुद्ध भक्ति के लक्षणों का वर्णन किया है। और रूप गोस्वामी जैसे आप जानते हो एक समय बड़े प्रसिद्ध राजा के राज्य का शासन कर रहे थे। उनकी रुचि नहीं थी। अंत में उन्होंने अपनी नौकरी त्याग की और महाप्रभु ने उन्हें उनके भाई को ज्ञान दिया, जिसके द्वारा उन्होंने ये कहा कि भक्ति से संबंधित ग्रंथों की रचना करो। क्योंकि स्वामी भक्ति रत्न सिंधु में क्या करते हैं? कहते हैं कि शुद्ध भक्ति के अनेक लक्षण हैं और शुद्ध भक्ति के द्वारा जो आनंद प्राप्त होता है वो कभी समाप्त नहीं होता। रूप गोस्वामी 3 प्रकार के आनंद का वर्णन करते हैं। एक है विचुअल हैप्पीनेस, भौतिक सुख। भौतिक सुख के विषय में क्या कहते हैं? भौतिक सुख किसी समय भी समाप्त हो सकता है। आध्यात्मिक सुख, आध्यात्मिक सुख आध्यात्मिक कार्य करने से केवल बढ़ेगा। और प्रहलाद महाराज जी कहते हैं इस विषय में न तो विदम स्वतः कथम विष्णु, लोग ये नहीं जानते कि असली सुख कैसे प्राप्त होगा। तो भौतिक सुख के द्वारा ये हमें भूलना नहीं चाहिए, किसी समय भी समाप्त हो सकता है। फिर जो आध्यात्मिक सुख है वो क्या होता है? ये वो बढ़ते जा रहा है। You put the fan on the other end. Fan. Is okay? So रूपा गोस्वामी कहते हैं 3 प्रकार की खुशी है। वो तीसरे प्रकार की कौन सी है? ब्रह्मांड की। तो उनका निर्णय यह है कि जो भक्ति योग है उसी के द्वारा असली सुख मिलेगा। तो भगवान ने श्रुदेव 5वें स्कंद में हमें उपदेश देते हैं। उन्होंने अपने बेटों को दिव्य ज्ञान दिया था और उस प्रसिद्ध श्लोक में क्या कहते हैं? नायम देह देह बाजन लोके कस्तम कामम भुज में तपो दिव्य पुत्र का ये न सत्वम शुद्ध स्मार्ट सो क्यों ना। आपको अगर हम दिव्य तपस्या करें भगवान की सेवा करने के लिए, उसके बदले में क्या प्राप्त होगा? फिर प्राप्त होगा क्या? क्या? अनएंडिंग स्पिरिचुअल हैप्पीनेस। तो हमारे में पूरा विश्वास होना चाहिए कि अगर हम शुद्ध भक्ति के मार्ग में जुड़ेंगे तो आपको असली आनंद प्राप्त होगा।
और भौतिक कार्यों के द्वारा अगर आनंद प्राप्त हो भी जाए वो किसी समय भी समाप्त हो सकता है। किताबे में प्रभु जी कह रहे हैं कि जो भगवान के भक्त हैं वो भक्ति योग इसलिए पालन करते हैं। भक्ति योग द्वारा क्या प्राप्त होता है कि अज्ञानता दूर होती है। अज्ञानता ओम ज्ञान तिमिरस्य करना, हम सबका जन्म होता है अज्ञानता में। तो साधु की संगत में आने से क्या हुआ है, अज्ञानता दूर हो जाती है। तो जब बच्चा पैदा होता है ABCD लिखना जानता है नहीं, तो आप उसे पाठशाला में भेजते हो और शिक्षा देते हो। तो उसी प्रकार साधु संग में आने से आपको क्या प्राप्त होता है, दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे कि इस संस्था में प्रचार के ऊपर इतना बल दिया जाता है, क्यों कि लोग जब गीता के संदेश को सुनेंगे पढ़ेंगे तो आध्यात्मिक जागृति बढ़ेगी। तो साधु संग में आने से हमें ये ज्ञान मिलता है कि परम भगवान जो है क्या है, बिल्कुल दिव्यम है और सच्चिदानंद विग्रह वो जो हैं उनका शरीर सच्चिदानंद है, सनातन है। और इसकी तुलना में जो भौतिक लाभ है वो कैसा है, वो किसी समय भी समाप्त हो सकता है। तो यहाँ तात्पर्य में बाबा जी गुजरम शब्द के वर्णन करते हुए इन सब चीज़ों का वर्णन करते हैं। आगे कहा गया है जब हम आध्यात्मिक नाम को सुनते हैं तो उसके बाद क्या होता है, हमारे भौतिक आकर्षण समाप्त हो जाता है। प्रभु साहब ने क्या कहा, अधो श्रद्धा तथा साधु कि पहले कदम में हमें श्रद्धा होनी चाहिए। क्या क्या श्रद्धा, यह भगवान के शरणागत होना चाहते हैं। और अगर आप इसको अगर आप साधु संगत में आओ और आपको देखो ज्ञान प्राप्त हो तो और आप जब इसका उच्चारण करो तो क्या लाभ होगा, अनर्थता जो हमारे हृदय में जो अनर्थता है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, उनका क्या होता है, उनका होता है। तो प्रभु जी कह रहे हैं तात्पर्य में कि जो व्यक्ति भक्ति योग के मार्ग में जुड़ता है व्यक्ति क्या क्या प्राप्त करता है, रियल हैप्पीनेस। तो हमें साधु संग का लाभ उठाना चाहिए। साधु की संगत प्राप्त करते हैं दो माध्यम से, वापु और वाणी, और दोनों हैं महत्वपूर्ण। यहाँ कहा जा रहा है, यहाँ एक और शब्द है तीर्थ, और तीर्थ का अनुवाद अर्थ है जो व्यक्ति सदा भगवान के नामों का उच्चारण करता है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि भगवान के नामों का उच्चारण करोगे तो क्या असली सुख प्राप्त कर सके। और जो संत है वो उनका एक गुण है साइलेंस। उसका अर्थ है कि साइलेंस का अर्थ क्या है, साइलेंस का अर्थ है चुपचाप रहना। तो यहाँ से यहाँ तात्पर्य में प्रभु जी कह रहे हैं कि असली साइलेंस क्या है, आप अपने जीव का सदुपयोग करो। अपने जीव का उपयोग करो किस लिए, भगवान के नामों के उच्चारण में। तो ये जो साधु हैं वो क्या करते हैं, उनके वो अगर चर्चा करें तो किस विषय की चर्चा करते हैं, भगवान के नामों के। और शास्त्रों में इस विषय पर बल दिया जाता है। तो भगवान के नामों के उच्चारण से हमारी जो अज्ञानता है ये दूर होती है। और यहाँ लिखा हुआ है जो भगवान के भक्त हैं वो नॉनसेंस
नॉनसेंस मतलब वो चर्चा जिसका परम भगवान से कोई संबंध नहीं है। और अगर हम दिव्य विषयों की चर्चा करेंगे तो क्या लाभ होगा? चेत दर्पण हृदय की जो मैल है ये दूर होगी। तो जो संत हैं उनके विषय में कहा जाता है दे ऑब्जर्व टोटल साइलेंस। टोटल साइलेंस ऑब्जर्वेशन का क्या अर्थ है? The saint uses his opportunity, uses his tongue to do what? Glorify the Supreme Lord. To glorify the Supreme Personality. रूपा गोस्वामी ने कहा भक्ति के रास्ते में जब आप जुड़ते हो हमें सावधान रहना चाहिए। और वो कहते हैं भक्ति नष्ट कैसे होती है? पर जल्पा ये मार्ग। और रूपा गोस्वामी कहते हैं तो जल्पा करोगे तो आध्यात्मिक जीवन जो आपका है वो कमजोर हो जाएगा और नष्ट हो जाएगा। तो शास्त्रों के आधार पर हमें पूरा ज्ञान मिलता है, क्या अनुकूल है क्या प्रतिकूल है। तो यहाँ तात्पर्य में प्रभु जी कह रहे हैं जो संत हैं वो साइलेंस, वो ज़्यादा चर्चा नहीं करते, पर उसका ये मतलब नहीं कि वो चर्चा नहीं करते, तो ये मतलब है कि वो प्रजल्पा में प्रजल्पा से बचते हैं। अगर हम शास्त्रों का लाभ उठाएं तो हम पूरा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, क्या अनुकूल है क्या प्रतिकूल है। तो भगवान के जो भक्त हैं वो क्या सदा यही चाहते हैं भगवान के गुणगान किया जाए। तो आप इस अध्याय में वृंदावन धाम की महिमा का विषय में सुनते हो और भगवान के धाम में हर चीज़ जो है क्या है कंप्लीटली ट्रांसफर। और भगवान के जो भक्त हैं उनकी क्या इच्छा रहती है कि सदा भगवान के नामों में का उच्चारण किया जाए। श्रीमद् भागवतम के द्वारा हमें ये संदेश प्राप्त होता है। और शास्त्र में क्या है श्रवणम कैसे प्रहलाद महाराज ने ये दिव्य ज्ञान प्राप्त किया था कहाँ जब वो माता के घर में थे। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि जो भगवान के भक्त हैं वो साइलेंस ऑब्जर्व करते हैं। साइलेंस ये मतलब नहीं कि उत्तर में प्रभु जी कह रहे हैं असली साइलेंस का मतलब क्या है कि आप अपनी वाणी का उपयोग करो किस लिए सदा भगवान के गुणगान करने के लिए। तो अगर हम वाणी का उपयोग करेंगे भगवान के गुणगान में तो क्या परिणाम होगा? इसके द्वारा अपने अनर्थ को आप दूर कर सकोगे। तो यहाँ कहा जा रहा है कैसे हमें आध्यात्मिक उन्नति करनी है। और ये कहा जाता है हमें सदा भगवान का गुणगान करना चाहिए। भगवान कलियुग में प्रकट होते हैं किस रूप में? अपने हरि नाम के साथ कली कले नामा रूपा कृष्ण अवतार। और कलियुग में भगवान अवतारित होते हैं नामों द्वारा। चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी थी पीते पीते आज से जता सर्वत्र प्रचार। आज दुनिया के कोने कोने में क्या हो रहा है यह हरि नाम पहुँच गया। क्योंकि ये है कलयुग का उपाय। जब परीक्षित ने पूछा बताओ इस कलयुग में कैसे लोगों का उद्धार होगा, तो सूर्य गोस्वामी ने क्या सूर्य गोस्वामी ने क्या कहा कले दोष है निराश। कलयुग में दोष ही दोष है। तो एक होने क्या कि भगवान प्रकट होते हैं दिव्य नामों के द्वारा। और भगवान के जो नाम है वो भगवान से अभिन्न है।
नॉन डिफरेंट फ्रॉम द लॉर्ड। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध मुक्तो बिना बंधन। भगवान के नाम है चिंतामणि, परस पत्थर जैसे है। परस पत्थर को जहाँ भी आप छोड़ोगे क्या परिणाम होगा? क्या? वो सोना बन जाएगा। तो इस श्लोक में ये संदेश मिल रहा है कि जो संत हैं वो आनंद उठाते हैं भगवान का गुणगान करने के द्वारा, और जो संत हैं वो चाहते हैं कि साधु संगत में रहें ताकि भगवान का गुणगान ज़्यादा सरलता से हो। देवहूति ने पूछा था अपने बेटे से, ये बताओ कि किस प्रकार मैं बौद्धिक संघर्ष से छुटकारा प्राप्त कर सके। ये होना चाहिए हम सबका भाव कि हम आध्यात्मिक उन्नति कैसे कर सकते हैं। और चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा, जो भक्ति के लिए अनुकूल है उसे त्यागो, और जो भक्ति के लिए प्रतिकूल है उसे स्वीकार करो। तो chanting the holy names is our most important business। और भगवान के नामों के विषय में जितना लोगे उतना ही कम है। कई बार लोग पूछते हैं डू यू गेट टायर्ड ऑफ chanting the holy name? अब एक ही नाम का उच्चारण करते बार बार अब थकते नहीं हो? तो क्या होता? नहीं थकते। अब भगवद गीता को पढ़ते हो, थकते हो? नहीं थकते। क्यों? क्योंकि ये है भगवान की वाणी, और भगवान की वाणी में कोई अपूर्णता नहीं, कोई दोष नहीं। तो अगर हम भगवान की वाणी का लाभ उठाएं तो क्या परिणाम होगा? हम आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। तो परम भगवान का गुणगान करना सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। और आप इस अध्याय में देखते हो भगवान की अनेक लीला है। भगवान ने कई असुरों का वध कर दिया था। उसके पश्चात ब्रह्मा जी को भी हरा दिया था। ब्रह्मा जी की इच्छा थी परीक्षा ली जाए इस बालक में कितनी शक्ति है, और ब्रह्मा जी ने सारे ग्वालों को छुपा दिया था। तो भगवान ब्रह्मा जी, भगवान को पता था कि ब्रह्मा जी की हरकत है। भगवान ने अपना विस्तार किया अनेक ग्वालों और बच्चों के रूप में, और ब्रह्मा को स्वीकार करना पड़ा कि उनकी जो योजना है सफल नहीं हुई। इसी प्रकार आप देखते हो कि इंद्र जी, उनकी इच्छा थी कि वो बड़े क्रोधित हो गए थे जब इंद्र यज्ञ रुका था। तो भगवान ने क्या कहा, इंद्र ने तेजी के साथ बारिश भेजी। समुद्र का बादल जो कि बहुत ऊंची आवाज़ करते हैं उनके द्वारा पूरी इतनी भारी वर्षा गिरी। पर भगवान ने क्या किया, छोटी उंगली के नाखों के बल पर क्या किया, गोवर्धन पर्वत उठाया। तो पिछले अध्याय में आपने देखा कि किस प्रकार ब्रह्मा जी ने स्वीकार किया कि उन्हें नहीं समझ सके, और ब्रह्मा जी ने बड़े सुंदर स्तुतियों के द्वारा परम भगवान का गुणगान किया। तो भगवान अपने भाई बालराम को लेकर कहाँ रहे हैं, तालाबान जंगल में जा रहे हैं, और उस जंगल में सुगंधित पेड़ थे, और इन सुगंधित पेड़ों में सुगंधित फल भी थे। तो जो भगवान के मित्र थे कहते थे, उन्हें पता था कि कृष्ण के द्वारा हम असंभव कार्य भी कर सकते हैं। उन्होंने देखा था कैसे उन्होंने नीलकुमार और मणिग्रीव का भी उद्धार किया था, और ब्रह्मा जी ने भी स्वीकार किया था कि उनकी जो योग्यता है वो इतनी सफल नहीं, वो ठीक नहीं है। ब्रह्मा जी एक समय गए थे द्वारका में
परम भगवान को मिलने के लिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा द्वारपाल को, बोलो। ब्रह्मा जी आए तो उनके सेवक ने कहा कि ब्रह्मा है आपको मिलने। तो उन्होंने क्या कहा, विच ब्रह्मा जी? तो ब्रह्मा जी जो 4 सिर के थे आकर्षित हो गए, उसी ब्रह्म पे भी है उसका मतलब। तो जब ब्रह्मा जी गए, भगवान को प्रणाम किया, और प्रणाम के करने के और समाप्त करने से पहले तो ब्रह्मा जी ने पूछा, मेरे अलावा और कोई ब्रह्मा है? तो वहाँ तुरंत क्या प्रकट हो गए, अनेक अनेक ब्रह्मा, कईयों के करोड़ सिर भी थे। वो ब्रह्मा देखकर आश्चर्य हो गए, ये संभव है। तो ब्रह्मा जी द्वारा परम भगवान का गुणगान सुना, और धेनु का और कृष्ण और बालराम अभी जा रहे हैं उस वन में, इसका नाम क्या था, थालावान। और यहाँ की एक सुगंधित पेड़ था जिसमें इतने सुगंधित फल थे, और जो ब्रजवासी थे वो तरस रहे थे इन फलों का टेस्ट प्राप्त करने के लिए। तो पहले तो भगवान जब छोटे थे वो देखभाल कर रहे थे किसकी, बछड़ों की। तो जैसे भगवान की उम्र बड़ी हुई, जैसे उनका शरीर ज़्यादा तंदुरुस्त हुआ, तो जो ब्रिजवासी थे उन्होंने कहा, नाउ यू आर द बिग बॉयज, नाउ यू टेक केयर ऑफ द काउज एंड बफलोज। पहले तो भगवान केवल बछड़ों की देखभाल कर रहे थे। जैसे योग्यता में बड़े, शरीर बड़ा हुआ, बाकी ब्रजवासी ने क्या कहा, अभी आप गायों की देखभाल करो। तो ये भगवान अपने मित्रों के साथ गए थालावान जंगल में। उन्होंने देखा सचमुच थालावान जंगल में बड़े खूबसूरत फल थे, इतने सुगंधित। तो बालराम ने क्या किया, आप दशरथ में देखते हो कई असुरों का वध हुआ बालराम के द्वारा, और कई असुरों का वध हुआ भगवान के द्वारा। तो ब्रह्म भगवान ने ज़्यादा असुरों का वध किया, बालराम ने केवल 8-9 असुरों का वध किया, में एक है धेनुकासुर। तो बालराम ने क्या, बालराम ने जाकर पेड़ को हिलाया, वो पेड़ से फल नीचे गिरने लगे। तो हाँ, धेनुकासुर थोड़ी दूरी पर था, वो समझ गया, समझिए इसका इनसाइड। उसने आके बोला, कौन है इधर, मेरे राज्य में कौन आ सकता है? कोई नहीं आ सकता। तुम यहाँ आकर ये पेड़ को हिला रहे हो? तो उसने मारा भगवान को, और फिर अंत में बालराम ने बड़े सरलता से वध किया। वो ऐसे घुमा के फेंक दिया, जो कि गिरे पेड़ों के ऊपर। तो परम भगवान के लिए कोई कहीं असंभव नहीं है। आप कहोगे हाउ इज इट पॉसिबल, छोटा बच्चा ये करके देखा है। तो इसीलिए हम कहते हैं ही इज़ गॉड, इज़ गॉड, इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। क्योंकि वो बचपन से ही अपनी अद्भुत लीला प्रकट करना शुरू कर देते हैं। तो भगवान ने धेनुकासुर का वध किया बड़ी सरलता के साथ। और ठाकुर भक्ति विनोद ने इस विषय की चर्चा की है। ठाकुर भक्ति विनोद पहले महान संत थे जिन्होंने वैदिक साहित्य के संदेश को अंग्रेजी भाषा, उड़िया भाषा, बांग्ला भाषा में पकड़ किया था।
भक्तिनाथ ठाकुर ने इन सारे असुरों का वध की चर्चा की है और इन लीलाओं को सुनकर क्या लाभ होता है, क्या लाभ होता है। इन लीलाओं को सुनने के द्वारा हमारे हृदय में जो अनेक प्रकार के अपराध हैं, दोष हैं, आकर्षण हैं, क्या होता है, वो कट जाता है। अगर आप जैसे भी कोई बीमारी से बचना चाहो तो क्या करते हो? तो सिमिलरली अगर आप भगवान की लीलाओं को पढ़ोगे तो क्या देखोगे, इन लीलाओं के विषय में सुनकर आपकी जो भौतिक आकर्षण है करेगी। तो परम भगवान ने धेनुकासुर जो कि प्रकट हुए थे गधे के रूप में, बड़ी श्रद्धा से उनका वध किया। और जब धेनुकासुर का वध हुआ उसके जो दूसरे साथी थे, सारे असुर जो हैं इनके साथ एक बड़ी सेना रहती है, ये अकेले नहीं आते। और जब उन्होंने देखा कि धेनुकासुर का वध हो गया है तो सारे जो साथी थे सब आगे बढ़े भगवान के भाई से लड़ने के लिए। भगवान ने एक को पकड़कर फेंक दिया। तो परम भगवान जो हैं उनकी लीला सदा क्या होती है, देखो। तो इसी प्रकार आप पढ़ोगे और भी असुरों का वध हुआ और भगवान ने भक्तों की सुरक्षा की। तो इन लीलाओं को हमें पढ़ना चाहिए और पढ़ोगे तो क्या, अज्ञानता दूर होगी। अज्ञानता से क्या होगा, ज्ञान बढ़ेगा। और इसके लिए इन ग्रंथों को हमें पढ़ना चाहिए। तो इस अध्याय में आप पढ़ रहे हो कि किस प्रकार भगवान ने धेनुकासुर का वध किया। धेनुकासुर का वध हुआ था किसके द्वारा, कृष्णा या भगवान हर असुर को वध कर सकते हैं। वो चाहते हैं थोड़ा क्रेडिट उनके बड़े भाई को भी दिया जाए। बलराम जी जो हैं कभी प्रकट होते हैं बड़े भाई के रूप में और कभी प्रकट होते हैं। उदाहरण के लिए जब भगवान राम प्रकट हुए थे तो उनके भाई किस रूप में प्रकट हुए, लक्ष्मण के रूप में। और लक्ष्मण के रूप में उन्हें कई प्रकार ऐसी सेवा करनी पड़ी जो इतने खुश नहीं थे। उन्होंने प्रार्थना की थी, अगर मुझे फिर से प्रकट होना है तो छोटे भाई के रूप में नहीं प्रकट होना चाहता, मैं बड़े भाई के रूप में प्रकट होना चाहता हूँ। क्योंकि बड़ा भाई ऑर्डर करता है और छोटे भाई को हमेशा सुनना पड़ता है। फिर यही भगवान फिर प्रकट हुए किस रूप में, नित्यानंद के रूप में। तो आज के इस श्लोक में आप पढ़ते हो कि वो संत हैं वो सदा भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं, वो कभी थकते नहीं। और अगर कष्ट की स्थिति सामना करना पड़े वो भी करते हैं। जैसे हरिदास ठाकुर के विषय में क्या पढ़ते हैं, हरिदास ठाकुर उनका क्या दोष था, एक ही दोष कि उनका आकर्षण था इनाम के प्रति। जबकि चांद काजी ने वो हरिदास से कहा तुम बंद करो क्या इनाम, हम जो मुसलमान हैं वो तो हिंदुओं के भगवान के नाम नहीं लेते, हम तो उनके घर से एक बूंद चावल भी नहीं खाते, तो तुम उनका नाम ले रहे हो। पर हरिदास ने इनकार कर दिया। और अंत में जब राजा ने कहा उन्होंने स्वीकार नहीं किया। और फिर राजा ने क्या कहा, ले जाओ और इसे पीटो बाजारों में। तो 22 बाजारों में उन्हें घसीट कर लोग पीट रहे थे। और हरिदास क्या करते गए, जब करते गए उनके पूरे शरीर में एक निशाना नहीं था,
और फिर हरिदास ने सुना कि जो पीट रहे हैं वो कह रहे हैं अगर हम इसे जिंदा छोड़ेंगे तो राजा हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो हरिदास उनको पीटा जा रहा है एक तरफ से, उनकी दया की भावना देखो। वो सोचते हैं अगर मैं मरूंगा नहीं तो राजा इनको जिंदा नहीं रहने देगा। हरिदास ने ऐसा व्यवहार किया जैसे उनकी मृत्यु हो गई। और जो पीट रहे थे उन्होंने सूचना भेजी हरिदास इज डेड नाउ, हरिदास इज डेड, गुड न्यूज। तो राजा को सूचना पहुंची हरिदास का देहांत हो गया। तो जो काजी था वो कह रहा था मुस्लिम रीतियों के अनुसार उनको उनकी समाधि कर दो, पर काजी ने कहा नो, वो धर्म का विरोधी था, उसे फेंक दो उसके शरीर को। कहाँ? जंग नदी में। और हरिदास फेंक दिया। हरिदास के पास इतनी शक्तियाँ थी कि वो अपने ब्रीदिंग प्रोसेस को पूरा रोक सके। और राजा को बाद में सूचना मिली कि वो हरिदास जो उन्होंने सोचा था मर गया है, क्या वो जप कर रहा है नदी के पार। तो राजा आया उससे माफ़ी मांगी। तो हरि नाम में रुचि रखने के लिए हरि नाम में क्या, हरि नाम का उच्चारण करना चाहिए। और कई बार कठिन चैलेंजेस भी आते हैं, हमें उनको भी स्वीकार करना चाहिए। आदमेंद्र पुरी ने भगवान के आदेश के अनुसार गोपाल विग्रह की स्थापना की थी। फिर भगवान ने मुझे समझ में कहा मुझे चंदन ला के दो, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। भगवान पुरी ने इतनी कठिन जिम्मेदारी स्वीकार कर दी और पैदा कर। तो भगवान के जो भक्त हैं, भगवान की सेवा में के दौरान अगर उन्हें कठिन सेवा भी करना पड़े, वो ये नहीं कहते हैं नो आई ओनली सर्व अकॉर्डिंग टू माय कंफर्ट। आजकल इसको में एक शब्द पॉपुलर हो रहा है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं कंफर्ट जोन। हमने सुना है पहले कंफर्ट जोन। हम सेवा करेंगे पर हमारी इच्छा के अनुसार, हमारी इच्छा के अनुसार सेवा, हमारी इच्छा के अनुसार प्रसाद का समय इत्यादि। तो हम इस भाव से करेंगे तो आप भगवान आध्यात्मिक मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर हम इस भाव से करेंगे डू वॉट एवर इज नेसेसरी, फिर आप भक्ति में आगे बढ़ोगे। तो भागवतम के अध्ययन के द्वारा आपको शुद्ध भक्ति का ज्ञान मिलता है और उसका अगर हम लाभ उठाएं तो फिर आप भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ सकते हो। तो आज के श्लोक में ये कहा जा रहा है कि जो बीज हैं वो संतों के साथ रहती है और जो बीज है वो क्या कर रही थी, भगवान का गुणगान। तो वृंदावन में जो भी हो, पेड़, पत्ते, फूल, बीज, सबका एक ही भाव रहता है। वो क्या है, क्या है? कृष्ण का गुणगान। And it's all they have interest, glorifying Krishna. और वो कभी थकते नहीं है। तो हमें भी इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और क्या प्रयास होना चाहिए कि हम भी सदा भगवान का गुणगान करें। और साइलेंस का मतलब क्या है? प्रजल्प से बचना। प्रजल्प से बच पाओगे only if you have some positive alternative. अगर आप कोई पॉजिटिव ऑल्टरनेटिव को डेवलप नहीं करोगे तो भक्तों की संगत नहीं रह पाओगे नहीं। तो और हमारा भाव होना चाहिए कि भगवान की सेवा के उपलक्ष्य जो भी सेवा करना पड़े मैं तैयार होना चाहिए। तो भागवतम पढ़ने से क्या लाभ होता है? शुद्ध भक्ति का क्या है? नस्त परेशु अवधेशु भगवती तुम्हारे श्लोक के भक्ति भागवत पढ़ोगे तो ये देखिए
मेहनत दूर होगी। तो ये है हमारा भाव। आप भागवत में पढ़ते हो, भगवान के जो भक्त हैं उनका पूरा विश्वास रहता है क्या ग्रंथों में। जैसे प्रभुपाद कहते थे, एवरीथिंग यू नीड टू नो इज इन माई बुक। तो भागवतम में 11वें स्कंद में आ गया है कि भगवान के भागवतम के संदेश को सुनकर क्या लाभ होगा। माया का प्रभाव घटेगा और भक्ति के प्रति रुचि बढ़ेगी। हम सबका प्रयास रहता है हरिना में रुचि बढ़ाएं, शास्त्र में रुचि बढ़ाएं। तो हरिना में रुचि कैसे बढ़ेगी और शास्त्र में रुचि कैसे बढ़ेगी? शास्त्र पढ़ना। तो ये श्रवण कितना बहुत महत्वपूर्ण है। और भागवतम का संदेश क्या है कि हम श्रवण कीर्तन में रुचि बढ़ाएं। आप जैसे जानते होंगे कि ये सब मैराथन हुआ था भागवतम सेट्स को बांटने के लिए, है कि नहीं? तो पूरे भारत में सब भक्तों ने मिलकर कितने सेट बांटे? 25,000, 25,000 सेट। तो पहले किसी ने सपना भी नहीं देखा था कितने सेट हम बांट पाएंगे। तो वशिष्ठ प्रभु कई भक्तों ने प्रेरणा दी, पर अंत में सब भक्तों के प्रयास से क्या हुआ? लगभग 25,000 सेट जो थे बटे हैं। और इन सेट्स को पढ़कर क्या लाभ होगा? आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ेगा। ये जो सेट्स हैं, आप में से किन किन भक्तों ने इस मैराथन में सहयोग दिया था? तो हमें अभी ये प्रयास करना चाहिए कि जिनको हमने सेट्स बांटे हैं उनको पढ़ें भी। पढ़ना इज ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट। ये नहीं कि से ले लिया सजा दिया, ठीक है, बेटर नॉट कीपिंग एनीथिंग। ज़्यादा बेहतर क्या है? आप इनको पढ़ोगे तो ज्ञान दूर होगे। तो श्रीमद् भागवतम के द्वारा में ये महत्वपूर्ण शिक्षा मिल रही है कि श्रीमद् भागवतम के द्वारा श्री भक्ति का ज्ञान प्राप्त हो। जब व्यासदेव नारद मुनि के पास पहुँचे थे, उन्होंने कहा मैंने इतने ग्रंथों की रचना की है, उनके सार को प्रस्तुत किया है, पर अभी भी मुझे लगता है मेरी रचना में कुछ कमी रह गई है। और उनके गुरु ने क्या कहा? क्योंकि तुमने केवल शुद्ध भक्ति के विषय पर बल नहीं दिया। फिर उन्होंने हमें भागवतम को ज्ञान। तो ये श्रीमद् भागवतम जो है, गामा कल्प करोड़ गलितम फलम, सारे वैदिक साहित्य का क्या है? सबसे पका फल। और ये पका हुआ फल कहाँ से आ रहा है? भगवान के दिव्य धाम से। और प्रभु जी कहते हैं अगर ये पका हुआ फल एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के द्वारा नीचे पहुँचाया जाए तो क्या होगा? यथारूप प्राप्त होगा। अगर ऊपर से कोई फेंकेगा तो क्या परिणाम होगा? टुकड़े टुकड़े टूट जाएगा। तो हमारा सौभाग्य है क्या कि प्रभु जी की कृपा से हमें ये ज्ञान प्राप्त हो रहा है। कैसे? परंपरा के द्वारा। तो ये जो भागवतम का मैराथन है, दैट गोज ऑन टू द एंड ऑफ ये मैराथन जाएगा कब तक? 28 अक्टूबर तक। तो आप सबको चांस है कि आप इस योजना में साथ दो। और फिर भगवान क्या इसके द्वारा प्रसन्न होते हैं। आप भक्तों से निवेदन है, रीड एंड डिस्ट्रीब्यूट। इसके द्वारा अज्ञानता दूर होगी और आप असली सुख प्राप्त करने का ज्ञान प्राप्त कर सकोगे। हरे कृष्णा। Okay. Any questions? Comment? No questions? Yes. We're running a little late. Yeah.
Hare Krishna Guru Maharaj. Maharaj, regarding in the lecture you are mentioning Vani Seva and Vapu Seva. So how we can understand that how much Vani Seva we have to do and how much Vapu Seva? Is there any differentiation? No, Vapi Seva, let's say the instructions of Vyasadeva, or the instructions of the Acharyas, or the instructions of the spiritual master. For some time, the Vapu is there, but then eventually the Vapu goes away, and what is left is Vani. So, more than important, but Vani Seva is more important. Just like Prabhupada said, I never felt that I was not next to my spiritual master. And in the Bhagavatam he says, he dedicates the Bhagavatam to his Guru and says, he lives forever by divine instruction and what? The followers of them. So, Prabhupada, we should feel the presence of the Guru. We will feel the presence when you follow the instructions. Yeah. Okay. Any more? Yeah. Quickly, जल्दी. हरे कृष्णा महाराज जी. महाराज जी, आप जैसे रीडिंग का इम्पोर्टेंस बता रहे थे, तो रीडिंग करने भी जाते हैं प्रभुपाद जी के बुक्स, लेकिन उसमें पहले तो इतना रुचि नहीं है, लेकिन कभी कभी बहुत समझ नहीं पाते हैं, या फिर प्रभुपाद जी के बुक कैसे पढ़ने चाहिए महाराज में हम प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं वो समझ पाए हम? एक बार सुनने से या एक बार पढ़ने से हम पूरे ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकोगे. इसलिए शास्त्रों में कहा गया है रेगुलर अटेंडेंस, रेगुलरली हमें पढ़ना है और सुनना है. और अगर आप रेगुलरली पढ़ोगे सुनोगे फिर क्या होगा, जो हृदय की मैल है ये दूर होगी. सो रेगुलर हियरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. कई बार हमें लोग में देखे थे, आई कैन अंडरस्टैंड द भगवद गीता, तो हम कहते हैं एक बार पढ़ने से थोड़ी गीता समझ रहे हैं, हम रोज पढ़ो फिर यू विल अंडरस्टैंड. Yes, any more? Quick. You want to make any announcement about the Bhagavata Marathon? हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम आपको, बहुत बहुत प्रणाम. प्रभु जी, जब राधा रानी, हेलो महाराज, जब राधा रानी श्री कृष्ण जी से विरक्त हुई थी तो उनको बहुत दुख हुआ था और वो दुख में भी आनंद प्राप्त करते थे. I'm sorry, फिर से बोलोगे. सर, जब राधा रानी जी श्री कृष्ण जी से मतलब जुदा हुई थी तो उन्हें बहुत दुख हुआ था, तब भी वो दुख में भी आनंद प्राप्त करती थी. और आज मेरी अगर बात करें सर, तो महाराज, तो जब मुझे मेरे मन का कुछ होता है अच्छा, तो मुझे भगवान पे विश्वास होने लगता है, पर जब मेरे मन से अलग होता है तो भगवान से, जब भगवान आपकी इच्छाओं को पूरी कर रहे हैं तो गॉड इज गुड. अगर हमें कोई दुर्घटना भी जाए तो हम कहते हैं भगवान ने ये क्यों किया, मैंने क्या गलती की थी, है ना. तो ये गलत विचार है. हमें ये सोचना चाहिए भगवान जो करते हैं हमारी भलाई के लिए, और अगर हम कोई दुर्घटना अनुभव कर रहे हैं वो है हमारे पापों का परिणाम. ये नहीं हम भगवान को कहें ऐसा क्यों हो रहा है. ओके, एनी मोर?
नरोत्तम प्रभु ने एक सूचना दी है कि हाँ आपके जू मंदिर ने जिम्मेदारी उठाई थी 2000 शेर बांटने के लिए। अब तक अब भक्त ने इतनी मेहनत की है पर केवल 1400 शेर बटे। सो द डेफिशिएंसी ऑफ हाउ मेनी सेट्स? 600 सेट अपने बांटना है और 15 दिन में। कई बार लोग कहते हैं इस्कॉन में बहुत से मैराथन होते हैं, एक मैराथन ख़त्म होता है, दूसरा शुरू होता है, दूसरा ख़त्म ही हो रहा होता है, तीसरे की योजना शुरू होती है। तो हम शांति से नहीं बैठ सकते। तो इस्कॉन में हमारा सिद्धांत क्या है? परा दुखा दुखी। और भगवान प्रसन्न कैसे होते हैं? जब हम उनके संदेश का प्रचार करते हैं। ये जो भगवतम सहज हम बांट रहे हैं, किस लिए? क्योंकि हम चाहते हैं कि सब आप जैसे भाग्यशाली बनो। आप अपने आप को भाग्यशाली मानते हो या नहीं? इसका में जुड़ गए हो। चैतन्य महाप्रभु ने एक दफ़ा कहा, मैं आज से केवल लखपतियों के घर में जाऊंगा खाना खाने। तो भगवान के जो भक्त थे वो घबरा गए, लखपति, हम तो लखपति नहीं है, तो महाप्रभु हमारे घर नहीं आएंगे। वो घबराते हुए रोते रोते महाप्रभु के पास पहुँचे। हमने सोचा कि आपने ये कहा है लखपति के घर खाओगे। महाप्रभु ने कहा लखपति का मतलब नहीं लाख करोड़ पैसे और जो हरिनाम को लाख पार करता है। तो भगवान प्रसन्न होते हैं जब उनके भक्त प्रयास करते हैं उनकी इच्छा को पूरा करने का। और ये जो भगवतम सेट्स है ये इनमें क्या है मैं सुन गया। तो आप ये मत सोचिए कि किसकी रुचि नहीं है। अगर आप प्रयास करोगे कि लोगों का उद्धार हो तो आप भी माध्यम बन सकते हो। तो हमारे मैराथन में कई भक्त जिन्होंने कभी ज़िंदगी में नहीं किया था बुक डिस्ट्रीब्यूशन, उन्होंने भी मेहनत करने पर काफ़ी सहज बातें। आप सब जुड़िए, जुड़ोगे? कितने दिन बच गए मैराथन के? 15 दिन बच गए, फिर एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। अब ट्राई करोगे? कितने भक्त ट्राई करेंगे? और बोलना नहीं चाहिए, आपको सूचना दे सकते हैं। ये भगवत मैराथन के बाद कौन सा मैराथन आएगा? एक और मैराथन यहाँ, वो है गीता मैराथन। तो मैराथन का अर्थ है जब आपको अधिक परिश्रम करना पड़े, अधिक परिश्रम एंड लेस ईटिंग एंड। तो जो भक्त है इसे डरते नहीं है, वो यही सोचते हैं अगर भक्ति का मैराथन नहीं होगा तो माया का मैराथन तो चल रहा है। माया का मैराथन सारा साल चलता है कि नहीं? हाँ, 365 डेज a year। अमेरिका में कई स्टोर्स हैं जिसमें लिखा होता है 24/7। आप समझे क्या मतलब है 24/7? ये दुकान 7 दिन खुली रहती है, 24 घंटे रोज। तो हमारा जो प्रचार का मैराथन है उसे भी ऐसा ही होना चाहिए, 24 days, 24 hours, 7 days a week। Okay, any more? Yeah. हरे कृष्ण महाराज। तो आपने जैसे बताया, और अभी हम आजकल देख रहे हैं महाराज कि जो नौजवान हैं, यूथ्स हैं, वो भक्ति करना चाहते हैं, उनका रुझाव है, उनका लगाव है, दे आर इंटरेस्टेड इन प्रैक्टिसिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस। बट क्या हो रहा है, उनका मन जो है वो इतना विचलित हो रखा है और इतना कंफ्यूज्ड हो रखा है कि मन उनको बार बार भौतिक की तरह खींचता है। तो वो प्रैक्टिस करना भी चाहते हैं तो कुछ चीज़ें उनको पीछे खींच रही हैं और वो बड़ा परेशान भी हैं।
तो वो क्या कर सकते हैं? भगवान कहते हैं गीता में, देवेश गुणमाई माया दुर्दया भाव में प्रपदनते माया में तम रहते। इस माया का विरोध करना बहुत कठिन है। तो भगवान ने कब कहा? 5000 साल पूर्व, कल नहीं, कल का संदेश नहीं है, ये गीता का संदेश है, हजारों साल से। भगवान कहते हैं माया का विरोध करना बहुत मुश्किल है। हर व्यक्ति संघर्ष कर रहा है मनोरंजन के साथ। तो भगवान ने कारण क्या है और उपाय क्या है, गुरु शिक्षा दी। इसलिए भगवान क्या कहते हैं, प्रैक्टिसिंग द सिस्टम ऑफ भक्ति योगा विल डेवलप अ डिजायर टू अटेन मी। अब भक्ति योग की विधियों का पालन करोगे तो उसके द्वारा मुझे शरणागत होने के ज्ञान प्राप्त करेगा। तो रूप गोस्वामी भी कहते हैं भगवान के नाम तो अत्यंत मीठे हैं, क्योंकि हमारी वाणी में अज्ञानता का है, बीमारी है, अविद्या, हम मीठापन महसूस नहीं कर रहे। तो क्या है उपाय? keep chanting. So Maya is just getting stronger, and the biggest distraction now is smartphone. The smartphones are a blessing also. If you're going to use the smartphones correctly, then it's a blessing. If you're going to misuse it, it's a curse. Smartphones are for smart people. And smart people are those who want to take shelter of Krishna. Okay. Any more questions? Yes. We should stop now. We're getting late. Hare Krishna Maharaj ji. Once I went to a guy. He was atheist, I think so. I'm sorry, can you speak louder? Once I went to a guy. तो वो अथिस्ट था, तो मैंने भागवतम सेट उसके पास में लेके गया, पर वो बोला कि व्हाई शुड आई बिलीव दिस भागवतम ऑल स्टोरीज एंड लीलाज एंड एवरीथिंग। तो वो बोला, मुझे उस एग्जांपल दिया कि स्पाइडरमैन, बैटमैन, वो भी कॉमिकल कैरेक्टर्स है, वो भी तो बिलीव नहीं कर सकते क्योंकि वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करते। तो मैंने भागवतम का रिलेटेड जो भी उसको एक्सप्लेनेशन दिया तो वो वैसा था कि आई गिव वन एग्जांपल ऑफ नेचर का भी लॉज है, तो वो भी भगवान ही सब हैंडल कर रहे हैं। तो फिर मैंने सेकंड एग्जांपल दिया बॉडी का, जो भी मैटर चल रहा है वो भी भगवान ही हैंडल कर रहे हैं। और थर्ड मैंने दिया कि सर्व कारण कारणम, तो भी उसको बिलीव नहीं हो रहा था कि क्योंकि मुझे भी ऐसा कोई एग्जांपल नहीं मिल रहा था कि उसको मैं कैसे कन्विंस करूं कि भागवतम सेट वो ले और वो पढ़े। तो महाराज जी थोड़ा मुझे एक्सप्लेन कीजिए। आप अपनी तरफ से ईमानदारी से प्रयास करो, और अगर आप ईमानदारी से प्रयास कर रहे हो then you depend on Krishna। आप ईमानदारी से कहो कि आप क्यों चाहते हैं कि ये पढ़ें, और जब आप ईमानदारी से करोगे तो फिर कृष्णा हेल्प्स, गॉड हेल्प्स दोज हू भगवान के सहयोग करते हैं, स्वयं प्रयास करो। तो प्रयास करो, प्रयास, effort is in our hand, result is not in our hand। और the good news is, suppose you do little bit of service, suppose you go out for distribution for 6 hours and you don't distribute so many books, and you may feel sad, but Krishna will give you credit for the full 6 hours। Krishna, Lord will give you credit। इस भक्त ने इतनी मेहनत की थी, you will get full credit। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं भक्ति में इतनी शक्ति है कि अगर आप आंख बंद करके दौड़ोगे तो भी गिरोगे नहीं। तो इन भक्ति
Nothing is wasted. Okay? Yeah. Yes. It's tough without a fan, and with a fan it becomes an airport. हरे कृष्ण महाराज, थैंक यू वेरी मच फॉर द वेरी वंडरफुल क्लास। महाराज आपने बहुत अच्छे से माधवेंद्रपुरी की कथा बता रहे थे एंड में, और ये शिक्षा बताई कि कैसे माधवेंद्रपुरी ने बड़ी कठिनाई से सेवा की गोपाल जी की स्थापना में। और फिर आप कंफर्ट जोन के बारे में बता रहे थे। ये जो कठिनाई से जब हम सेवा करते हैं तो मन एक बार, दो बार, तीन बार ऐसे मंजूर कर भी लेते हैं हम माधवेंद्रपुरी की उदाहरण लेकर, और क्योंकि रिसोर्सेस और ये लिमिटेड होते हैं तो कोई ना कोई तो कंफर्ट जोन में रहता है, और रिसोर्सेस लिमिटेड होने के बजाय उसके कारण से दूसरे जो कठिनाई में रहते हैं एक दो तीन बार कर लेते हैं, बट दोबारा बार बार कैसे हम प्रेरणा दें कि कठिनाई से सेवा किया जाना चाहिए तो भगवान प्रसन्न होंगे। प्रभुपाद के जीवन में हम देखते हो, and he struggled for really 40 years before he was here in 1965. है ना? तो भौतिक संघर्ष और आध्यात्मिक संघर्ष में अंतर है। भौतिक संघर्ष हो, आप कामयाबी प्राप्त नहीं करो, then there's a good chance you get brain hemorrhage, depression, nervous breakdown. But in spiritual effort, even if you are facing challenges and you don't succeed, you have nothing to worry. But if you're making an honest attempt, Krishna will give you credit. Before. And there's so many examples of devotees who had to face challenges. Look at Haridas Thakur. How much distress he had to undergo. Yes, any more? Yeah. We'll take only two more questions and then stop. Yes? मेरा ये क्वेश्चन है कि मेरे लेवल पे मैं देखता हूँ कि साधना में इतनी रुचि नहीं है, होली नेम में एंड बुक रीडिंग में, लेकिन सेवा करने की मतलब बहुत इच्छा होती है, या फिर एक एक्टिविटीज़ नहीं क्या पैशन में एक एक्टिविटी या एंगेजमेंट लगती है तो हम बहुत सारी सेवा करने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर साधना अच्छी न होने के कारण फिर वो मेंटेलिटी सेवा में नहीं रहती है, फिर बहुत बार होपलेस नेस आ जाता है। आपका कहने का मतलब है सेवा करने का तैयार हो पर शास्त्र में इतनी रुचि नहीं है आपकी। यस, doesn't matter, go on serving और शास्त्र में रुचि बढ़ जाएगी। आज आपको लगता है शास्त्रों के अध्ययन में इतनी रुचि नहीं है तो सेवा में है, तो आप ये करते जाओ सेवा। उससे प्योरिफिकेशन। There's one boy in Canada in Montreal, वो 35 साल से रोज मंदिर आता है बर्तन मांजने के लिए, और शास्त्रों को पढ़ने में उसकी रुचि नहीं है, सेवा में है। रोज आता है एक दो घंटे के लिए सफाई करने के लिए। तो अगर आपके शास्त्रों में कम रुचि है और सेवा में ज़्यादा है, do that. And slowly you get purified. Okay? Anything else? Yeah. Hare Krishna Maharaj. Maharaj, just now you mentioned one line while. Just now you mentioned one line while answering one question that if somebody is running blindly on the path of on the spiritual path, even that person will also make progress. Can you little bit explain, Maharaj? The point is, devotional service executed in any manner, in any field,
will give you a benefit. It's not that if you don't distribute 10,000 Gitas, you're useless. Even if you distribute one Gita, even if you try to distribute and you may not distribute, still you get the credit. So devotional service, rendered knowingly or unknowingly, is beneficial. Okay? Hare Krishna Guru Maharaj. Last question. Yeah. Like Chakravarti Prabhuji mentioned that the youth is facing problems during bhakti. They want to do, they are interested, but there are many distractions. But after that, even though we do it regularly or sincerely, we have most of the time it is we are expecting something. Means is it possible to do bhakti without expectations, even during chanting or doing any seva? Krishna wants us to render pure devotional service. Pure devotional service means no material desire. Krishna Bhakta Niskama Teva Shanta Mukti Mukti Siddhi Kami Sarkarya Shanta. But we are so conditioned, we say, no, why should I serve with that condition? I have a material desire. But Krishna's devotional service is so powerful that even if you serve with a motivation, you will get what? Purified. Dhruva Maharaj, he was chastised by his stepmother. You haven't taken birth from my womb, so you can't sit on your father's lap. So Dhruva Maharaj started executing devotional service. And he finally said that he had the Lord's darshan. And the Lord said, Dhruva, because of me you underwent so many austerities. What do you want? Dhruva said, my dear Lord, now I don't want anything. I was looking for broken glass, but I found a diamond. So we don't expect everyone who joins the movement, he instantly is a pure devotee. But if we keep following, then we get purified. Okay? Thank you. The important thing is stay in devotee association. Don't give up devotee association at any cost. And chant and read. Is that right? Okay, any more? Yeah. हरे कृष्णा महाराज जी मैं नया भक्त हूँ 16 माला मतलब करने में मन नहीं लगता महाराज जी गाइड कीजिए आप। मन नहीं लगता? जी महाराज जी। कितनी चीज़ें हैं जिनमें मन नहीं लगता। अब बीमार हो जाते हो, डॉक्टर का इलाज कराते हो, डॉक्टर कहता है इंजेक्शन लेना पड़ेगा। अभी देखो जिधर भी जाना है वैक्सीनेशन लेना पड़ता है। आपको वो अच्छा लगता है? नहीं, पर आप करते हो क्योंकि मजबूरन। तो अगर आप समझो कि जीवन का लक्ष्य है भगवान की सेवा, तो फिर मन नहीं भी लगे जबरदस्ती ठीक रास्ते पर चलो। ओके, सो आप लोग भूलोगे नहीं भागवतम का भागवतम के कितने सेट और करने हैं? 600 तो जू के भक्तों के लिए छोटी बात है। So you please try. Okay? Hare Krishna. हरे कृष्ण। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की, श्रील प्रभुपाद की।